Okay, dear, welcome back. I was telling you about the contents of book, Emotions and Organizational Behavior. And we were talking about the 6th point, which is bounded emotionality. इसी तरह 7th point देखिए, जिसमें हम individual and group effect in problem solving work groups की बात करते हैं. And the 8th step, 8th heading, जहां तक मैं आपको लाना चाह रहा था, it is very interesting. Like the first time when I opened this book and I happened to see this heading, I really loved this book. And the 8th heading is talking about nonsense makes sense, in which we are focusing upon the humor in social sharing of emotions at the workplace. Okay? So just look at the beauty of the approach, that how people are basically investigating different contexts of human mind and thought patterns, and how beautifully this title has been picked, that nonsense makes sense. Let me just show you that how organizations are actually incorporating humor technically in the organizations. For that, I have to share with you a video clip, and for that sharing, मैं यहाँ पर ये slide की sharing off कर रहा हूँ, and I'll be showing you the video जिसमें कि हम organizations किस तरह से humor को technically organizations के अंदर incorporate कर रही हैं. We'll have a witness of that. So for that matter, you have to turn on your speakers a bit. Here I go. Thank you. As we all know, work is serious business, especially in tough economic times. Most of us feel that since we're grown-ups who want to do our best on the job, we've got to be serious about it. But many companies, like Price Waterhouse, an accounting firm, are learning that we shouldn't overdo it, that there is value in encouraging employees to relax, to laugh, to play around a little bit. In fact, they're even spending money on the idea. At a recent Florida training session for 250 tax consultants, Price Waterhouse hired humor consultant Matt Weinstein to teach them how to loosen up. Your industry is not exactly famous for having a sense of humor about itself. He urges them to get to know one another better, to write with vegetable pens and wear clown noses from time to time, and to send each other energy when they are feeling low, even to ask for standing ovations when they feel the need for support. He believes a company which encourages levity benefits, especially during hard times. At the basic level, it loosens up the stress that we're under so we can think more rapidly and look at things in a different way, because that's what laughter is about. Price Waterhouse even took their people to a comedy club one night to show them how the professionals do it. Was this emphasis on humor worthwhile? Yeah, I could see it making me a little more productive. They'll get rid of that tension that I have doing some of the jobs, and bringing laughter to it would make it easier to do. We hope to communicate them that the firm's very invested in these professionals and very conscious of the stress and rigors that they work under. John Cleese, British actor, director, and producer, is a pioneer in using humor as a teaching tool. He's created a series of best-selling business training films based on the premise that people don't learn when they're anxious and tight and closed. They open when they learn when they're open and relaxed. And humor is a wonderful way of getting them into that mode. More and more businesses are institutionalizing humor. Ben & Jerry's Ice Cream in Waterbury, Vermont is a fast-growing company with a revolutionary corporate philosophy. If it is not fun, why do it? They have a group of employees called the Gang of Fun who plan regular events to put joy in the lives of fellow workers. One day last winter, they announced an Elvis Presley Appreciation Day. The president of the company arrived accordingly. Many Elvises entertain, and business never seems to suffer. Ben & Jerry's is the fastest growing company in Vermont, a company where people love coming to work. Eastman Kodak in Rochester, New York recently opened a humor room where employees go to get a break. They play computer games, put on silly costumes, and watch lighthearted videos. Why? One of the things we want is to create a place where people can go to bring out their creative capabilities, to help them be creative. At a time when many businesses are struggling to survive, humor consultants are booked into the year 2000. Finding relief in grim economic times is creating a demand for their message. That joy in the work that you do and a sense of lightheartedness in your approach and a more lighthearted work
work environment in appropriate ways may enhance productivity, morale, creativity, and team building, not detract from it. How you choose to view what's going on dictates whether you cope with it or it crushes you. Nickelodeon Children's Network in New York City knows how to create a lighthearted work environment, which they feel is critical to their success. If you're running a creative enterprise, you really need to have an environment that's filled with fun and play and humor, and that just sets the stage for the most productive kind of work. The key to success at work, take your job seriously, but yourself lightly. I don't know. Learning to laugh at work is serious business. Humor heals the soul, creates camaraderie, and gives people the balance they need to survive change and adversity. Experts agree that companies whose employees overcome their fear of being foolish will only benefit. And as someone once said, he who laughs, lasts. So we can witness that how the professionals are doing it, how companies are actually investing in these things. And basically, as I told you, that the research and the latest work is going on related to the nonsense which makes sense to them. So ये तमाम चीजें हैं जो no doubt इंसानी पर्सपेक्टिव में कई हवालों से हमें देखनी है, सोचनी है, समझनी है, हमें गैप्स को आइडेंटिफाई करना है और हमें ये बात आइडेंटिफाई करनी है कि किस तरीके से हम इन तमाम पर्सपेक्टिव्स को टैकल कर सकते हैं. जैसा कि यहाँ पर अब क्रॉस कल्चरल नेगोशिएशन की भी बात की जा रही है, बाउंडेड इमोशनैलिटी एंड फर्दर इंटरपर्सनल बिहेवियर के बारे में बात की जा रही है. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग बुक. आई होप दैट यू वुड एंजॉय स्टडीइंग इट. नाउ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का जो कोर्स वर्क है, इसका जो ये फील्ड है पूरा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का कंसर्न, ये मरहूने मिन्नत है 5 सब्जेक्ट फील्ड्स का. 5 सब्जेक्ट फील्ड्स जो हैं, जिन्होंने बिहेवियरल साइंसेस के कॉन्टेक्स्ट में जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को वो क्रिएट किया, जन्म दिया, दे आर बेसिकली साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी and political science. ठीक है, the 5th field is not written on the slide, that is the political science, जिसको मैंने ये contribution side पे अगर आप sociology के आगे देखें तो 2 expressions हमारे पास लिखे हुए हैं, power and conflict. तो ये जो power and conflict का context है, ये basically political science को वो tackle कर रहा है. तो ये 5 subject fields जो हैं, ये basically contribute करती हैं organizational behavior के subject field को वो develop करने के लिए, क्योंकि organizational behavior का subject field बजाते खुद शायद कोई ग्राउंड नहीं रखता. इस फील्ड में इन्वेस्टिगेशंस जो हमारे पास आ रही हैं, दोज इन्वेस्टिगेशंस आर कमिंग फ्रॉम साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स, सोशल साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स, एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स, एंड ऑब्वियसली जो पॉलिटिकल साइंस की फील्ड है वो हमें पावर एंड पॉलिटिक्स के बारे में वो सब कुछ बता रही है. अब हम ये देखते हैं कि साइकोलॉजी की जो बिहेवियरल साइंस की फील्ड हमारे पास अवेलेबल है, उसका कंट्रीब्यूशन हमने किन किन हवालों से पिक किया, विच इज फोकसिंग अपॉन द यूनिट ऑफ एनालिसिस विच इज इंडिविजुअल एंड कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. साइकोलॉजी की फील्ड से जो एरियाज हमने पिक किए, दे वर रिलेटेड टू लर्निंग, मोटिवेशन, पर्सनैलिटी, इमोशंस, परसेप्शन, ट्रेनिंग, leadership effectiveness, job satisfaction, individual decision making, performance appraisal, attitude measurement, employee selection, work design, work stress. ये तमाम एलिमेंट्स हैं जो हम साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में वो पिक कर रहे हैं. अगर हम सोशल साइकोलॉजी की बात करें तो सोशल साइकोलॉजी का जो कंट्रीब्यूशन था, इट वाज रिलेटेड टू द बिहेवियरल चेंज, एटीट्यूड चेंज, और यह हम सोसाइटी लेवल के ऊपर बात कर रहे हैं, क्योंकि सोशल साइकोलॉजी बेसिकली एक मुआशरे की सोच को हम कहते हैं. सो उसमें बिहेवियरल चेंज ओवरऑल कलेक्टिवली वो देखा जाएगा, एटीट्यूड चेंज के ऊपर बात की जाएगी, कम्युनिकेशन के बारे में बात की जाएगी, ग्रुप प्रोसेसेस, ग्रुप डिसीजन मेकिंग, ये सब जो कंसर्न्स थे, दे वर कमिंग फ्रॉम सोशल साइकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस. और उन्होंने हमें यूनिट ऑफ एनालिसिस जो ग्रुप लेवल था उसको डेवलप करने में मदद दी, और वहां से हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का जो कॉन्टेक्स्ट है वो डेवलप हुआ. Likewise, जब हम सोशियोलॉजी की बात कर रहे हैं तो सोशियोलॉजी इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट अगेन द कम्युनिकेशन एट सोशल लेवल. देन पावर एंड पॉलिटिक्स, जिसको मैं ग्रुप कर रहा हूं रिलेटेड टू द सब्जेक्ट फील्ड ऑफ पॉलिटिकल साइंस एज वेल.
देन इंटर ग्रुप बिहेवियर्स, इसी तरह फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी, ऑर्गेनाइजेशनल टेक्नोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ये तमाम चीजें जो थी इनके बारे में हमने इंफॉर्मेशन वो जिस सब्जेक्ट फील्ड से कलेक्ट की, दैट वाज सोशियोलॉजी, जिसने कि हमें ग्रुप लेवल एनालिसिस करने में मदद दी एंड इवेंचुअली इट कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर सब्जेक्ट फील्ड। अगर हम एंथ्रोपोलॉजी की बात करें, एंथ्रोपोलॉजी बेसिकली आपका क्रॉस कल्चरल कंपैरिजंस की बात करता है। सो अगर हम क्रॉस कल्चरल कंपैरिजंस का बात करें तो उसमें एंथ्रोपोलॉजी से जो कंट्रीब्यूशंस हमारे पास आए, दे वर रिलेटेड टू कंपैरेटिव वैल्यूज, कंपैरेटिव एटीट्यूड्स, क्रॉस कल्चरल एनालिसिस, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट एंड पावर डिस्कशन। ये तमाम चीजें एंथ्रोपोलॉजी के सब्जेक्ट फील्ड से हमने पिक की, जिन्होंने हमें यूनिट लेवल ऑफ एनालिसिस, ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम को डेवलप करने में मदद दी। और इन लेवल्स को जब हमने इंडिविजुअल, ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशनल लेवल को हमने कंबाइन किया, तो फ्रॉम देयर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर सब्जेक्ट फील्ड वो डेवलप होती हमें नजर आती है। अब यहां पर एक चीज समझनी बहुत आसान है कि पर्टिकुलरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिसर्च हम इन एक्सप्रेशंस को कैजुअली यूज नहीं कर सकते। लर्निंग, मोटिवेशन, पर्सनैलिटी, इमोशंस, ये तमाम एक्सप्रेशंस जो हैं, दे होल्ड वेरी साइंटिफिक एंड वेरी टेक्निकल डिटेल्स एंड एक्सप्लेनेशंस एंड यूजेज। वी कैन नॉट जस्ट pick the word from our general vocabulary and use it in the research context. इस बात को elaborate करने के लिए मैं आपसे साइकोलॉजी की तरफ से जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है उसमें पहला पॉइंट लिखा हुआ है लर्निंग। मैं सिर्फ लर्निंग पर्सपेक्टिव को आपसे शेयर करने लगा हूं कि लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात कर रहे हैं तो लर्निंग से मुराद क्या कुछ हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सिर्फ लर्निंग पर्सपेक्टिव को देखूं तो we can find many definitions of learning, और हर एक definition जो है वो एक different context में चीजों को explain कर रही है। For example, Kuhn in 1883 he defined learning as a relatively permanent change in behavior due to past experience, whereas Kimball in 1961 defined learning as a relatively permanent change in behavioral potential which accompanies experience but which is not the result of simple growth factor of reversible influences such as fatigue or hunger. अब आप इसी डेफिनेशन के दो के कंपैरिजन में बात को देखो कि हमारा कॉन्टेक्स्ट जो है वो किस कदर तब्दील हो रहा है या किस कदर डेवलप हो रहा है। इसी तरह in 1980 Hovey said that a learning is basically a biological device that functions to protect the human individual and to extend his capabilities. Likewise, there are so many other definitions we have. It can be a change in human disposition. It can be learning is a relatively permanent change in person's knowledge. You can also say that the learning is the cause of the change in learner's experience. Look at the next point. It is said we define learning as the transformative process of taking in information. इसी तरह another expression can be it has been suggested that the term learning defies precise definition because it is put to multiple uses. ठीक है, और ये सारे का सारा डिपेंड करेगा कि हमने एक सिंपल वर्ड अगर लर्निंग का भी यूज करना है तो किस कॉन्टेक्स्ट में हम उसको यूज वो कर रहे हैं। लर्निंग कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज एक्वायरिंग नॉलेज एंड स्किल्स। लर्निंग कैन बी अ प्रोसेस दैट लीड्स टू चेंज। लर्निंग कैन बी द प्रोसेस गेनिंग नॉलेज एंड एक्सपर्टीज। Learning involves strengthening correct responses and weakening incorrect responses. अब आप देखो कि इस कॉन्टेक्स्ट में भी जब हम बात कर रहे हैं कि learning involves strengthening correct responses, ये 8th पॉइंट में पढ़ रहा हूं, and weakening incorrect responses, इसको भी हम learning का नाम देते हैं। So a persistent change in human performance is also learning. Learning is a process that occurs within nebulous environments of shifting core elements, इसको भी हम learning कह रहे हैं। यहां पर जो कॉन्टेक्स्ट में आपके साथ डेवलप करना चाह रहा हूं कि जब हम इन एक्सप्रेशंस को पिक करते हैं तो हमें उसके डीपर इंप्लीकेशंस को जाकर देखना पड़ेगा। ये आपका एक इंग्लिश का नोट या एसे राइटिंग नहीं होती रिसर्च, ये बेसिकली अप्लाइड साइड, कॉन्टेक्सचुअल साइड, बहुत सी चीजों को मद्देनजर रखकर आप अपने एक्सप्रेशंस को यूज और डेवलप वो करते हो।
लाइकवाइज अगर आप मोटिवेशन की बात करो तो देयर कैन बी सो मेनी कॉन्टेक्स्ट जिसमें कि मोटिवेशन के पर्सपेक्टिव को हम एलैबोरेट कर सकते हैं। मोटिवेशन आपकी नीड बेस्ड कॉन्टेक्स्ट में भी डेवलप की जा सकती है, जैसे कि मैस्लो हायरार्की नीड थ्योरी हम पढ़ते हैं। मोटिवेशन को अगर हम हर्ट्जबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी के हवाले से देखें तो फिर आपकी इंट्रिंसिक नीड और एक्सट्रिंसिक नीड्स आ जाएंगी। अगर हम मोटिवेशन को एल्डरफर्ड ईआरजी थ्योरी के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ का कॉन्टेक्स्ट आ जाएगा। अगर हम मोटिवेशन को मैक्लियंस 3 नीड थ्योरीज के हवाले से देखें तो नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर पावर एंड नीड फॉर एफिलिएशन के कॉन्टेक्स्ट हमारे पास आ जाएंगे। सो देयर आर सो मेनी वेज जिससे कि मोटिवेशन के पर्सपेक्टिव को आप एलैबोरेट कर सकते हो। नाउ इट ऑल डिपेंड्स कि आपका कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिस्कशन वो क्या है और उस कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक आप एप्रोप्रिएट थ्योरी और एप्रोप्रिएट जो टर्मिनोलॉजी है उसको किस तरीके से बैलेंस वो करते हो। सो याद रखें आपके रिसर्च के कॉन्टेक्स्ट में भी जो राइटिंग एबिलिटी है उस राइटिंग एबिलिटी में सही अल्फाज का चुनाव और अल्फाज का यूजेज जो है वो एप्रोप्रिएट होना वो बहुत जरूरी है, वरना आपका मतलब कहां से कहां चला जाएगा। जस्ट लाइक दैट सिंपली पर्सनैलिटी को कोट करना और पर्सनैलिटी के कॉन्टेक्स्ट में मैक्वेलिनिज्म को कोट करना, पर्सनैलिटी के कॉन्टेक्स्ट में लोकस ऑफ कंट्रोल को कोट करना, पर्सनैलिटी के कॉन्टेक्स्ट में एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट के कंपैरिजन के ऊपर बात करना। सो पर्सनैलिटी इटसेल्फ इज ए मल्टी फैसेट एक्सप्रेशन। ठीक है, अब पर्सनैलिटी की इन्वेस्टिगेशन के लिए भी आप कौन सा टूल यूज कर रहे हो, आपने MBTI स्कोर कैलकुलेट किया है कि आपने बिग 5 एनालिसिस किया है। सो ये सब चीजें पर्सनैलिटी के तासुर को वो तब्दील कर देंगी। फॉर एग्जाम्पल जब पर्सनैलिटी के ऊपर डिस्कशन होनी शुरू हुई तो हमारे पास सबसे पहला जो मॉडल आता है दैट इज द ट्रेट थ्योरी। और ट्रेट थ्योरी के मुताबिक जब इन्वेस्टिगेशंस ह्यूमन पर्सनैलिटी के बारे में की गई तो दे केम टू नो कि there are something like 17,953 dimensions of the human personality. अब 17,953 dimensions of human personality को ढूंढने के बाद उन्होंने bottom line of the research में लिखा कि this was wastage of time and resources. Now why it was wastage of time and resources? Because 17,953 dimensions find out करने से आपने human personality का complete analysis नहीं कर लिया, इसके अलावा भी बेशुमार dimensions थी which are yet to come. Therefore, फिर हमने पर्सनैलिटी को असेस करने के लिए अपनी आसानी के लिए MBTI का मॉडल, उसके अलावा हमने बिग 5 स्कोर, मैक्वेलियनिज्म, लोकस ऑफ कंट्रोल, सेल्फ एस्टीम, बहुत सारे इस तरह के जो फैक्टर्स थे उनको डेवलप कर लिया सो दैट हम कोई बाउंड्री अपनी डेवलप कर सकें जिस बाउंड्री के अंदर इन एक्सप्रेशंस को वो यूज किया जा सके। लाइकवाइज इमोशंस की आप बात करें तो लातादाद इमोशंस हैं, परसेप्शन की बात करें तो हर शख्स अपनी एक डिफरेंट परसेप्शन वो रखता है। सो जैसा आपको मैंने पहले भी एक स्टेटमेंट परसेप्शन के हवाले से बड़े मजे की बताई थी कि रियलिटी इज व्हाट यू परसीव इट टू बी, नॉट द रियलिटी इटसेल्फ। सो हकीकत के बारे में जो भी परसेप्शन आपके जहन में है वो आपकी परसेप्शन है और जरूरी नहीं कि जो आपकी परसेप्शन हो वो दूसरे शख्स की भी परसेप्शन हो और वो सही भी हो। इसी तरह ट्रेनिंग, जॉब सेटिस्फेक्शन, ये तमाम वो चीजें हैं जिनके अंदर एक पूरा पूरा समुंदर आबाद है ऑफ टर्मिनोलॉजीज, ऑफ कॉन्सेप्ट्स, ऑफ थ्योरीज, ऑफ मॉडल्स। और हमें ये देखना होगा कि हम इन एक्सप्रेशंस में क्या कंट्रीब्यूशन इन द बॉडी ऑफ नॉलेज लेकर आना चाहते हैं और किस हवाले से हम वो बात करना चाहते हैं जो आज से पहले और किसी ने ना की हो। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अभी हम कुछ जो लेटेस्ट रिसर्च गैप्स एंड एरियाज हैं उसके ऊपर बात करेंगे। बट फिल वक्त जो चीज रिक्वायर्ड थी वो ये थी कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के कोर्स वर्क में जो कंट्रीब्यूशन हमारे पास आ रहा है इट इज कमिंग फ्रॉम साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी एंड द फिफ्थ फील्ड आई एम टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल साइंस। अब हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के सब्जेक्ट फील्ड में अपनी ओरिएंटेशन को बेहतर करने के लिए एक बेसिक ओबी मॉडल वो अवेलेबल है और इस ओबी मॉडल को समझे बगैर आप ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का जो मेन कॉन्टेक्स्ट है उसको ग्रैब ठीक से नहीं कर सकोगे। सो अब हम अपनी डिस्कशन शुरू करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मॉडल के हवाले से। डिस्कशन शुरू करने से पहले सबसे ऊपर स्लाइड के ऊपर मैंने एक इक्वेशन लिखी हुई है कि इनपुट गोज टू आउटपुट। दिस इज बेसिकली द बेसिक इक्वेशन ऑफ मैनेजमेंट। जैसा कि आप सब लोगों ने अकाउंटिंग के कोर्सेज में बेसिक इक्वेशन ऑफ अकाउंटिंग पढ़ी होगी कि एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी, तो ये आपकी बेसिक इक्वेशन ऑफ अकाउंटिंग जो है आपकी सारी की सारी अकाउंटिंग इसी के गिर्द घूमती है। सो बेसिक इक्वेशन ऑफ मैनेजमेंट इज बेसिकली दैट आवर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन व्हिच आर इनपुट goes to output which is the production.
और इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान जो इनपुट से आउटपुट की ट्रांसफॉर्मेशन है, वी नीड टू हैव एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। अब अगर इस बेसिक इक्वेशन ऑफ मैनेजमेंट को मैं ह्यूमन पर्सपेक्टिव में यूज करूं, तो ह्यूमन पर्सपेक्टिव में मेरे पास ये मॉडल अवेलेबल हो जाता है। अगर इस मॉडल के आप लोअर लेफ्ट कॉर्नर में देखें, तो लोअर लेफ्ट कॉर्नर में हमारे पास एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ह्यूमन इनपुट, और अगर आप इस मॉडल के अपर राइट कॉर्नर में देखें तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ह्यूमन आउटपुट। ठीक है, अब ह्यूमन इनपुट से ह्यूमन आउटपुट तक जो स्टोरी है वो बेसिकली यहां पर एलेबोरेट की गई है कि उस ट्रांसफॉर्मेशन में कौन कौन से फैक्टर्स किस किस तरीके से आपस में वो कोरिलेट वो हो रहे होंगे। सो इस एक्सप्रेशन को समझना हमारे लिए ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए वो बहुत जरूरी है। उसके बाद फिर हम ये डिसाइड करेंगे कि इन पर्सपेक्टिव्स में, इस पूरी ट्रांसफॉर्मेशन में जो कि ह्यूमन इनपुट से ह्यूमन आउटपुट तक जा रही है, कहां पर आप अपना कंट्रीब्यूशन वो लेकर आना चाहते हो। आया आप अपना कंट्रीब्यूशन इंडिविजुअल लेवल कॉन्टेक्स्ट में लेकर आना चाहते हो, आप अपने कंट्रीब्यूशन को ग्रुप लेवल कॉन्टेक्स्ट में लेकर आना चाहते हो, कि आप अपने कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिस्कशन को ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम्स लेवल के ऊपर वो डेवलप करना चाहते हो। सो सबसे पहले इस मॉडल को स्टार्ट करने से पहले मैं इस मॉडल का एक इंट्रोडक्शन आपके साथ पढ़ रहा हूं। सो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मॉडल is concerned with the tools to understand and alter behavior that can be examined at 3 levels of analysis, and those 3 levels are individual, group and organizational. These factors include personality and ability, attitudes and values, perception and attribution, learning, motivation, stress, work-life linkages, individual differences, and these all can be divided into personality and ability differences. Understanding the nature, determinants, and consequences of individual differences is essential for managing organizational behavior. An appreciation of the nature of individual differences is necessary to understand why people behave in certain ways. और अब इस लेवल के ऊपर हमारा जो मेन इन्वेस्टिगेशन है वो व्हाट के एरिया से निकलकर वो वाई तक जा रहा है। लोग क्या बिहेव करते हैं, इस इन्वेस्टिगेशन की बजाय लोग क्यों वैसे बिहेव करते हैं, ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो बनता जा रहा है। सो इस वाई के जवाब के लिए, दैट वाई पीपल इन सर्टेन बिहेव इन सर्टेन वेज in an organization, we have to understand the conceptual frameworks related to the organizational behavior. So group is defined as a collection of 2 or more people who interact together to achieve their goals. A team is a group in which members work together intensively to achieve a common goal. Work groups are the basic building blocks of an organization. And work groups use roles, rules, and norms to control their members' behavior, and they use several socialization tactics to turn newcomers into effective group members. Group contributes to organizational effectiveness when group goals are aligned with organizational goals. So organizational structure and culture affect performance and how the changing global environment, technology and ethics impact work attitudes and behavior. Organizational structure and culture affect how people and group behave in an organization. Together they provide a framework that shapes attitudes, behaviors and performance. Organizations need to create a structure and culture that allow them to manage individuals and intergroup relations effectively. So this is our context in which we have to go through the detail of this OB model. अब यहां पर इस पूरे OB फ्रेमवर्क के अंदर मैंने आपको सब्जेक्ट एरियाज भी हाईलाइट कर दिए हैं कि कहां पर कौन सा सब्जेक्ट एरिया किस तरीके से इंटीग्रेट हो रहा होगा। फॉर एग्जांपल, जब हम ह्यूमन इनपुट की बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव। उसमें HR प्लानिंग से लेकर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ये सब चीजें आपकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये सब कुछ आपका शामिल हो जाएगा कि जहां से हमने ह्यूमन को बेसिकली स्ट्रक्चर पर हायर किया एंड वी स्टार्टेड डेवलपिंग द कल्चर।
उसके बाद जब एक ह्यूमन हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटी का मेंबर बन जाता है, एक सिस्टम का पार्ट बन जाता है, सिस्टम का कंपोनेंट बन जाता है, तो वहां से फिर उसके ओबी कंसर्न्स जो हैं, उसके जो बिहेवियरल इश्यूज हैं, उनके ऊपर हम बात वो शुरू कर देते हैं। इसी तरह जब हम ओबी से डेवलप करते हुए ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चरल लेवल डिटेल्स पर जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम्स की जब हम बात करेंगे, तो दैट इज द एरिया फोकसिंग अपॉन ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। जब हम इस पूरे पर्सपेक्टिव को ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजिक गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के साथ टारगेट्स के साथ अलाइन करेंगे, तो दैट इज द एरिया जब हम एसएचआरएम की बात कर रहे होंगे। और जब हम आउटसाइड एनवायरनमेंट से आने वाली तब्दीलियां जो ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट कर रही हैं, उनकी बात कर रहे होंगे, तो दैट इज द टाइम जब हम ओडी चेंज एंड स्ट्रेस की बात कर रहे होंगे, जो आपके लेफ्ट साइड ऑफ द स्लाइड के ऊपर वो दर्ज है। सो दैट इज हाउ ये सारे के सारे सब्जेक्ट फील्ड्स जो हैं, ये आपस में इंटीग्रेटेड हैं। दे आर ऑल वोवन टुगेदर टू मेक अप द कंप्लीट होल। अब हम इस डिस्कशन को, इस पूरे फ्रेमवर्क में किस तरीके से बातों को कोरिलेट किया गया है, वो स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहली बात याद रखिएगा कि इस पूरे फ्लो शीट डायग्राम के अंदर जितने भी एरो हेड हैं, दे आर ऑल इंडिकेटिंग डिपेंडेंट वेरिएबल, और जितनी भी एरो टेल्स हैं, दे आर बेसिकली इंडिकेटिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस पूरी फ्लो शीट डायग्राम के अंदर जितने भी एरो हेड्स हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट डिपेंडेंट वेरिएबल्स, और जितनी भी एरो टेल्स हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। सो अब इस पॉइंट को ध्यान में रखकर हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है ह्यूमन इनपुट, कि आउटसाइड एनवायरनमेंट से ह्यूमंस हमारे पास हायर किए जा रहे हैं। और ह्यूमन इनपुट के लिए मैंने अभी आपको एक एक्सप्रेशन यूज किया था, विच इज KSAOs, नॉलेज, स्किल, एबिलिटी एंड अदर पर्सनैलिटी ट्रेट्स। इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन HRM के अंदर भी करेंगे। फिल वक्त आपको मैं उसका आइडिया दे देता हूं कि जब हम ह्यूमन इनपुट में नॉलेज की बात कर रहे हैं, तो नॉलेज इज टॉकिंग अबाउट 3 E's. 3 E's are basically experience, exposure and education. That would make up the person's knowledge. Second is skill. When we talk about skill, तो मिंट्सबर्ग के मॉडल के मुताबिक वी हैव टेक्निकल स्किल, कंसेप्चुअल स्किल, ह्यूमन स्किल, इसी तरह एंटरप्रेन्योरल स्किल, डिसीजन मेकिंग स्किल, ट्रबल हैंडलिंग स्किल, ये सब आपकी स्किल्स आ गई। जब हम एबिलिटी की बात करते हैं, तो वी आर फोकसिंग अपॉन साइकोलॉजिकल एबिलिटी एंड फिजियोलॉजिकल एबिलिटी। एंड ऑब्वियसली जब हम साइकोलॉजिकल एबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो वी आर टॉकिंग अबाउट IQ, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, वी आर टॉकिंग अबाउट EQ, इमोशनल क्वोशिएंट। इसकी भी हम कंप्लीट डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। और जब हम फिजियोलॉजिकल एबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारा कंसर्न हाउ पीपल टॉक, हाउ पीपल वॉक, हाउ पीपल सिट, हाउ पीपल स्टैंड, हाउ पीपल वर्क, उसकी जितनी भी फिजिकल डेक्स्ट्रिटी है, स्टेमिना है, इन चीजों को हम फिजियोलॉजिकल एबिलिटी में काउंट वो करते हैं। एंड व्हेन वी से अदर पर्सनैलिटी ट्रेट्स, तो फिर एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, ये सब डिटेल आपकी डिस्कशन वो शुरू हो जाएगी। और आज हम इंशाल्लाह अपने इस सेशन में एक पर्सनैलिटी असेसमेंट टेस्ट भी करेंगे, जिस पर्सनैलिटी असेसमेंट टेस्ट में आई बी टेलिंग यू कि किस तरीके से पर्सनैलिटीज को वो असेस किया जाता है टेक्निकली ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज के अंदर। सो ह्यूमन इनपुट हमारे पास आया, तो ह्यूमन इटसेल्फ इज इंडिपेंडेंट, और जो चीज कंट्रीब्यूट कर रही है इन द ऑर्गेनाइजेशन, वो है उसकी टेक्निकली स्पीकिंग एबिलिटी, जिसके अंदर आप एक्सप्रेशन और भी ऐड कर सकते हो, विच इज KSAOs। दूसरा बॉक्स जो इस इंडिविजुअल लेवल पे हमें अवेलेबल है, जिसके साथ कोई और एरो हेड अटैच नहीं है, दैट इज बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, कि वो पर्सन जो हमें ज्वाइन कर रहा है उसकी बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स वो क्या है। और जब हम बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, तो बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स वुड इंक्लूड एज, जेंडर, टेन्योर, मैरिटल स्टेटस, रेस, and you can also add related to the race, ethnic group. ठीक है? So age, gender, tenure, marital status, race, ये जो factors हैं, these are taken up as biographical characteristics. अब आप जिस भी एज ग्रुप से बिलोंग करते हो, your gender, then your marital status, your sect, caste, religion, nationality, your race and your marital status, इन चीजों के ऊपर डिपेंड क्या कर रहे हैं? इन चीजों के ऊपर डिपेंड कर रही है आपकी पर्सनैलिटी एंड इमोशंस। ठीक है? अब नो डाउट इन तमाम बातों के पस मंजर में देयर वुड बी अ लॉट ऑफ रिसर्च,
there would be lot of articles, there would be lot of theories and models operational. So आपकी personality and emotions, आपकी biographical characteristics जो भी आपको मैंने बताई, उसके ऊपर डिपेंड कर रही है, और आपकी पर्सनैलिटी एंड इमोशंस पे जो चीज डिपेंड कर रही है वो आपकी परसेप्शन है. आपकी परसेप्शन जिस चीज को ट्रिगर कर रही है, दैट इज योर इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग. अब सबसे नीचे स्लाइड पर देखिए, हमारे पास एबिलिटी है जो कि ह्यूमन इनपुट से हमने पिक की थी. उस एबिलिटी पे क्या चीज डिपेंड कर रही है, उसके ऊपर जो वेरिएबल हमारा यहां पर दिख रहा है, दैट इज इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग इज बेसिकली डिपेंडेंट अपॉन योर एबिलिटी. और इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग से हमें जो लिंक आगे फर्दर डेवलप होता नजर आ रहा है, दैट इज गोइंग टुवर्ड्स द परसेप्शन, कि अब आपके फैसलों में क्या सही था क्या गलत था, वो चीज आपकी परसेप्शन को टैकल वो करेगी. अब आपकी एबिलिटी और इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग, इन दोनों को जो चीज इफेक्ट कर रही है, दैट इज इंडिविजुअल लर्निंग, के वक्त के साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम आप जो कुछ लर्न कर रहे हो. इसके अलावा एक शख्स के पास अनदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स. और वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स पर, जैसा भी आपको मैंने शुरू में वैल्यू सिस्टम के बारे में बताया कि इंसान का वैल्यू सिस्टम इज डिटरमिन्ड बाय द एनवायरनमेंट, इज डिटरमिन्ड बाय द रिलीजन, इज डिटरमिन्ड बाय द फिलॉसफीज, इज डिटरमिन्ड बाय द जेनेटिक कोड. तो आपके जो वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स हैं उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है आपकी मोटिवेशन, और आपकी मोटिवेशन दोबारा ट्रिगर कर रही है इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग को. अब ये सारे जो इश्यूज हैं, दे आर एक्चुअली रेफरिंग टू टू इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स. वन इज इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग, जो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर हमें कंक्लूसिव पॉइंट मिल रहा है, एंड अनदर एक्सप्रेशन इज कि इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग से भी जो चीज डेवलप कर रही है, दैट इज परसेप्शन. एंड परसेप्शन इज द फैक्टर जो कि आपको इंडिविजुअल लेवल से ग्रुप लेवल में लेकर जाएगा. ठीक है, जहां पर दो लोगों की परसेप्शंस वो आपस में मैचअप करती हैं या क्लैश करती हैं, वहां से आपका ग्रुप लेवल शुरू होता है. अब अगर आपको नोनाका का मॉडल याद हो नॉलेज मैनेजमेंट का, तो हमने बात की थी कि टैसिट टू टैसिट के बाद टैसिट टू एक्सप्लिसिट की बात शुरू होती है, जिसमें कि आप सोशलाइजेशन प्रोसेस से गुजरते हो. और सोशलाइजेशन प्रोसेस में हमने डिस्कस किया था प्री अराइवल, एनकाउंटर, मेटामॉर्फोसिस और आउटकम. सो यहां पर आपका जो प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन विद द अदर्स है, वो शुरू होता है बेस्ड अपॉन योर परसेप्शन. और जब हम परसेप्शन से, अपनी परसेप्शन के साथ दूसरे शख्स की परसेप्शन को मैचअप करते हैं, तो दैट इज द टाइम दैट वी आर कम्युनिकेटिंग. सो कम्युनिकेशन इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द ग्रुप लेवल, जहां से इंडिविजुअल इंटरेक्शन वो ग्रुप इंटरेक्शन में कन्वर्ट हो रही है. अब आपने लोगों से कम्युनिकेट किया अपनी अपनी परसेप्शंस के मुताबिक, और आपकी परसेप्शन के बैकएंड के ऊपर आपकी पर्सनैलिटी, इमोशन, वैल्यूज, एटीट्यूड्स, एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग से आपकी विद द पैसेज ऑफ टाइम लर्निंग, ये सब कुछ शामिल होगा. और यही तमाम बातें दूसरे शख्स के साथ भी वाबस्ता है. उसका एक अपना ब्रॉटअप है, उसकी एक अपनी जिंदगी है, उसके अपने बायोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी अपनी पर्सनैलिटी, इमोशन, और ये सारा कुछ है. सो वहां से कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन वो हुई, और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन से आपकी ग्रुप स्ट्रक्चर फॉर्मेशन वो शुरू हो जाती है. अब जैसा कि आपको ग्रुप स्ट्रक्चर फॉर्मेशन के पॉइंट्स का पता होगा कि यू स्टार्ट फ्रॉम फॉर्मिंग, देन नॉर्मिंग, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, एडजॉर्निंग, या आपके टिपिकल जो स्टेप्स होते हैं ग्रुप मेकिंग के. सो वो आपके प्रोसेसेस शुरू हो जाएंगे, आपस में नॉर्म्स एस्टैब्लिश होंगे, आपस में ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी, आपस में परफॉर्मेंस से रिलेटेड डिस्कशंस होंगी और परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन डेवलप होगी. तो दैट इज द पॉइंट जब आप अपनी परसेप्शन से कम्युनिकेट करते हुए ग्रुप फॉर्मेशन में गए. एंड एट द सेम टाइम याद रखिएगा कि ग्रुप फॉर्मेशन से रिलेटेड देयर आर ऑलवेज कॉन्फ्लिक्ट्स टेकिंग प्लेस. तो यहां से पूरी स्ट्रीम कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की भी इवॉल्व करती है. जब हम ग्रुप की बात करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट कैन ऑलवेज कम इन. अब आपका जो इंटरेक्शनिस्ट अप्रोच है इन द कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट लिटरेचर, उसका कहना यह है कि whenever two people are interacting with one another based upon their perceptions, उनके दरमियान कन्फ्लिक्ट लाजमो मलजूम अमर है. हर सूरत वहां पर कन्फ्लिक्ट होगा. एक बड़ी इंटरेस्टिंग कोटेशन है कि अगर दो लोग एक जगह पर हो और उनके दरमियान कोई कन्फ्लिक्ट ना हो, तो देयर कैन बी 3 सिचुएशंस. वन, दैट दे आर नॉट टू. दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि वन ऑफ देम इज टेलिंग अ लाई, और तीसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि वन ऑफ देम इज अ डम. सो याद रखिएगा कि
जब कभी भी दो लोग एक जगह पर मौजूद हैं तो उनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट का होना लाजमी अमर है। अब यह बात भी याद रखिएगा कि कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के लिटरेचर के मुताबिक कॉन्फ्लिक्ट्स आर नॉट ऑलवेज बैड, कॉन्फ्लिक्ट्स कैन बी वेरी मच कंस्ट्रक्टिव एज वेल। तो इसके बारे में कहा यह जाता है कि कॉन्फ्लिक्ट इटसेल्फ इज नॉट बैड, मिसमैनेजमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज बैड। तो हमें मिसमैनेजमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने की वो जरूरत है। सो अब हमने अपनी परसेप्शन के मुताबिक लोगों से कम्युनिकेट किया, ग्रुप फॉर्मेशन हुई, ग्रुप फॉर्मेशन में कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हुए और कॉन्फ्लिक्ट्स के आते ही वहां पर पावर एंड पॉलिटिक्स का जो रोल है वो शुरू हो गया। अब हम ग्रुप लेवल वेरिएबल्स की डिस्कशन कर रहे हैं। And power and politics would be affecting group structure, and group structure would be affecting power and politics. Same is the case that group structure would be affecting conflict, and conflict would be affecting group structure. Same is the case that group structure would be affecting communication, and communication would be affecting group structure. अब अगर उन ग्रुप्स में यूनिफिकेशन ऑफ आइडिया हो, उन ग्रुप्स के पास एक ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेशन हो, उन ग्रुप्स में एक आपस में कोहेसिव वैल्यूज हो, तो वहां से ग्रुप कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क टीम्स। और वर्क टीम्स में जब डिसफंक्शनल एस्पेक्ट्स आने शुरू हो जाएं तो दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क ग्रुप्स। अब चाहे आप ग्रुप टीम्स की बात करो या वर्क ग्रुप्स की बात करो, ये सारा मामला चलेगा आपका in the light of the leadership follower relationship and the values in terms of trust. So trust is the main matter जो कि basically group structure formation and team formation के अंदर आपको required होता है। और अगर trust का element निकाल दिया जाए तो ना leadership effective रहेगी, ना group effective रहेंगे, और ना ही आप अपने desired objectives तक वो appropriately पहुंच पाओगे। So leadership and trust again are basically the outcomes related to the group level discussion. और उसी पर बेस्ड आपकी जो लीडरशिप एंड ट्रस्ट फैक्टर्स है, उसी पर बेस्ड आपकी ग्रुप डिसीजन मेकिंग वो हो रही होगी। अब ग्रुप डिसीजन मेकिंग की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे आपके वेरिएबल्स, बहुत सारे मॉडल्स, बहुत सारी डिस्कशंस वो ग्रुप डिसीजन मेकिंग के भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। जैसा आपने शुरू में देखा, इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग का फैक्टर जो परसेप्शन को इफेक्ट कर रहा था, तो इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग में बाउंडेड रैशनैलिटी आपका का जो कॉन्सेप्ट है, रैशनल मॉडल, बहुत सारे फैक्टर्स हमारे पास डिसीजन मेकिंग के वो अवेलेबल हैं। इसी तरह जब हम ग्रुप डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं तो नॉमिनल ग्रुप अप्रोच, डेल्फी अप्रोच, ब्रेनस्टॉर्मिंग, बहुत सारी हमारे पास टेक्निक्स हैं कि आप ग्रुप डिसीजन मेकिंग को इफेक्टिव वो कैसे बना सकते हो। अब लीडरशिप एंड ट्रस्ट का जो फैक्टर है ग्रुप लेवल के ऊपर, तमाम डिपार्टमेंट्स के जो लीडर्स हैं और तमाम डिपार्टमेंट्स में जो पाए जाने वाला ट्रस्ट है, जहां से इंटरपर्सनल एसोसिएशंस वो डेवलप होती हैं, ये वो एलिमेंट है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के कयाम को, ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल को वो इंश्योर करने में मदद देता है कि जब डिपार्टमेंटल कॉन्टेक्स्ट में हर एक फंक्शनल एरिया के जो लोग हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे, तो एक सिंक्रोनाइज्ड, पैटर्नाइज्ड वे में एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कंप्लीट एक सिस्टम की मानंद वो चलने की कोशिश वो करेगी। So that is the reason कि ग्रुप लेवल से जब हम ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम्स लेवल की बात करते हैं तो वहां पर हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड डिजाइन की बात वो शुरू हो जाती है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड डिजाइन के कॉन्टेक्स्ट में जब उस स्ट्रक्चर के ऊपर लोग हायर हो रहे थे तो दैट वाज मेकिंग अप द कल्चर। यहां पर हमारा Zoom मीटिंग टाइम सेकंड सेशन वो खत्म हो रहा है, एंड इंशाल्लाह विल रिज्यूम आवर डिस्कशन sharp at 7:35.